today's webcast. I hope you all are going to enjoy today that we will try to make it best of it, and that would be our objective all about. I'm finding at the moment 30 participants are there. यूट्यूब पे लाइव भी कर दिया एक्चुअली वी आर वेटिंग फॉर काफी लोग यूट्यूब पे वेट कर रहे हैं सर तो मैंने तब तक यूट्यूब नहीं किया जब तक आप नहीं आए So it's starting or not? Yeah. नाउ यूट्यूब इज लाइव सर Okay, so how it goes around? It goes Zoom plus YouTube both? Zoom How both. Okay, so there are a lot of participants on YouTube and a lot of YouTube on Zoom. जी But yes how can I see the some kind of comment which is coming on YouTube? सर ये चैट पे होगा सर चैट पे होगा और मैं YouTube से उठा के इसमें आपके Q&A में सेक्शन में डाल दूंगा सर उठा के Acha, it means it will be coming here like also. यस Okay. तो जो लोग यहाँ पे होंगे वो यहाँ पे चैट कर लेंगे या फिर Q&A सेक्शन में डाल देंगे और जो मैं वहां से YouTube उठा के यहाँ पे मैं यहाँ वहां पे डाल दूंगा All right, not an issue. मैंने कहा मैं चेक कर लूं कैसा है कैसे चल रहा है. जी Okay, चलिए. All right, now let's start with at the outset let me thanks Nitin ji and his team working so hard for professional wisdom, knowledge sharing, and that's what we all are doing this during COVID-19 time period. And Gaur Saab ne already here said that whenever you listen to me, you get something new out of it. Let's see, let me try today also. Let me try to get something new for you and for all the participants today. And they must enjoy the something different they are hearing today. I know during COVID-19 time period, lot of webinar going on, a lot of presentation going on, and lot many speakers coming in and giving their presentation. Everyone is having due respect, no regards, nothing contrary to that, all regards to them. Now, important part is that subject matter is same, but interpretation is different. And now this interpretation going to be taught, this is the important area. We all know that GST since July 1, 2017, and we are finding it is evolving. Even as on date, we are not coming to a conclusion what is written in the law and what is the implication of it, how the interpretation need to be done. I will try to make it simpler for the participants, those who are watching on Zoom or those who are watching on YouTube. My chat box is also on. I really want that those who are watching this webinar, they should be interacting with me. It should not be one-sided presentation from my side. I really want that you should participate. I really believe that sabka saath, sabka viswas. I'm not from BJP, but I believe in when we go together, then only we learn faster. One-sided presentation never works out to be a good presentation. I want this presentation should be coming from your perspective, which you are understanding. I will try to make your position simpler, wiser, that I will first try to give you the law interpretation, give you the practical case example, and then I will involve each one of you to answer in a chat box. I really want to see in a chat box that you all are, participating with me, and whatever answer coming to your mind, please. But you answer when I'm asking you. In a chat box, you would be coming in only when I'm asking you what is the answer of this one and what is your understanding. Otherwise, listen to me very, very carefully. I will try to make it as simple as it is. Topic given to me, place of supply and ITC and interplay and intricacies. So maybe I will pick up 5-6 case studies, not more than that, 5-6 case studies. And during this case studies, we will discuss at length the legal provision under place of supply and input tax credit under GST law. So let's start with the very first example where I want that you should be listening to me and giving your answer. Those who are on a Zoom at the moment, can I see something from chat box that what is the probable queries they have on place of supply? If they can write down in a Zoom chat box, at least I will get some flavor of it that this is what you're looking for. Can I get some idea, please? Can I get some idea? There are, participants joining in from different corner. I really want to have some query from each one of you. If you can write down in a chat box that this is what the probable query you're having on place of supply or ITC.
If I really find that I can take these queries during my deliberation, I will definitely try to touch base those queries and will try to give the reply of those queries. Can I have those queries, please? So I'm finding that 40 participants odd are there. Okay. Ankita is the first one. She is writing and okay. Okay. Okay, Ankita, noted down. Okay, Haryana, Delhi. Okay, all right. Ayush has sent one query. All right. Two guys has posted their query on place of supply, which I have read it. One is Ankita, next is Ayush. Anyone else want to write down something on place of supply, or it becoming like ulta that before I start I'm asking you guys to write back. Nevertheless, don't feel like that. Whatever query which you're having in your mind and you're not getting answer, let's start from there only. I'm giving some time because by that time we will get audience coming in, and then we can start our deliberation accordingly. So 2 queries on place of supply, I got it. Okay, if not, then let me start with the very first one. And I'm starting with the query of Ayush. So Ayush, see, when you're putting, yes, Vimalji, somebody has raised hand. Mr. Chawla, can I unmute him and he will want to ask a question over there? Narendra Singh also raised hand. He can write down in a chat box. That would be much better. Others can see that also. Perfect. Sir, मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है सर सबसे कि सर उसमें डाल दे so that end of the day बाद में अगर किसी ने क्वेश्चन पूछना होगा और जो टाइम बचेगा मैं उसको फिर अनम्यूट कर दूंगा बाद में, ठीक है सर? हाँ, और उसको लास्ट में करेंगे अपन. ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है. राइट सर. चलिए आयुष के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं. ओके ओके, ऑलराइट. कुलदीप जी ने भी एक क्वेश्चन पूछा है, बट ठीक है, अब आप लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो मैं देख भी पा रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है. संजय गुप्ता जी ने क्वेश्चन पूछा है. ऑलराइट, नॉट एन इशू. चलिए हम पूरी कोशिश करेंगे आज आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी मिले और आपको इंटरेस्ट और मजा भी आए सब्जेक्ट मैटर का. Look at the place of supply. So in GST, there's the interplay of registration versus place of supply. There are 2 subject matter. And we should not get confused also. For simple reason, registration we have to take in the state where from we are supplying goods or supplying services. So it's an origin based. Though GST is a destination based consumption tax, meaning thereby, if I'm supplying from Delhi to Haryana, Delhi to Gurgaon, my origin is Delhi and my goods or services are going to Gurgaon. GST, the SGST component which state is getting is a consuming state. But for registration, you have to take registration in the state where from you're supplying goods or supplying services. So in registration, I have clarified one issue that you have to take registration in the origin state. But GST is a destination-based consumption tax. Now then, what is the reference of this place of supply? Why this place of supply concept existing in GST? This place of supply concept existing in GST for simple reason to identify where ultimately goods and services are consumed, so that SGST component must go to that consuming state. So place of supply is being made to identify a state where goods or services are being consumed. So what is the answer coming out? Answer is coming out that GST has got registration, GST has got place of supply, but 2 aspects are different. Now, just to take it further so that you will understand a little more about the subject matter.
Now, when I say place of supply only to identify the consuming state, we should not get confused with the registration. And let me start with the very first one. I used posted one query in the beginning. I'm starting with that query to tell you the concept. Let's say I'm registered in Delhi. Bimal Jain registered in Delhi. And I'm going to ask these queries and I would be looking for the answer from all of you, which you have to post. I'm registered in Delhi and I got 4 property, immovable property, one in Haryana, one in Karnataka, one in Tamil Nadu, one in Andhra Pradesh. So I got 4 immovable property, but I'm registered in Delhi. Now my simple question, and this question is being discussed at length at number of forum. I said I got 4 immovable property in 4 different states. My first question, do I require to take registration in the state where immovable properties are being located? My property is located in 4 different states. I'm simply asking you, do I require, Bimal Jain required, who is registered in Delhi, to take a registration in 4 different states? Now, you can answer in a chat box, then I will take you along. So what is your take? Do we require to take registration? So Rakesh Garg is saying yes. Then Avnish Jain, CA Pradumna Kumar, Pradeep Kapoor, maximum are saying no, no need of taking registration in different state. Ankita Mittal is saying yes, we require to take 4 different registration in 4 different states. Now let's listen to me carefully. I've seen the chat box answer. Maximum are saying no, we don't require to take registration in 4 different states. Some of them are saying no, we need to take registration in different states. Now, as I said in the beginning, place of supply is not putting any condition on you that you should take registration in the state where goods and services are consumed. If I look at place of supply for immovable property, then place of supply is location of immovable property, meaning thereby consumption for this services would be where immovable property is located. I have said in the beginning, place of supply provision is being made to identify which is the state where ultimately goods and services are consumed. Having said that, now we have to really analyze this question and check the answer. I got 2 propositions. The first proposition, I'm a landlord. I'm registered in Delhi, but not having any registration in 4 different states. If I say, no, I will not take registration in 4 different states, then legal argument. How come I say that? How can I say that I need not require to take registration? How can I say that? Then we have to go to the definition of location of supplier or location of recipient. Location of supplier definition says my principal place of business where I have taken registration, that is Delhi. So first and foremost, for registration, I need to look at my principal place of business, which is Delhi.
Second, if there is no principal place of business, then the fixed establishment. And fixed establishment is characterized by sufficient degree of permanence of human or technical resources. This is not applicable. Third, establishment most directly concerned. So that can be the case, but that is coming third in a row. Third in a row. And last, usual place of residence. So there are 4 staircases. We have to look at from the staircase perspective. First would be my principal place of business for taking registration, which is Delhi. I'm registered in Delhi. So if I am registered in Delhi and my property is located in 4 different states, and let's assume I have rented out these property to a client located in that state only, So let's say my Gurgaon property, I rented out to Gurgaon-based client. Now, in this given situation, Bimal Jain has not taken registration. So what he will do? He will raise invoice on renting of immovable property from Delhi. So location of supplier, which is Delhi, and place of supply for this immovable properties, location of immovable property. So Bimal Jain going to charge IGST to a client registered in Haryana, and he will take the registration or he will take the credit. Client is already located in Haryana. So client will take credit of IGST charged by Bimal Jain. Now in this given situation, you may have one apprehension, and for that reason, there are different answers. If Bimal Jain has not taken registration in Haryana, then whatever inward supply of goods or services pertaining to that immovable property, wherein supplier is charging CGST and Haryana SGST, that credit will not be available to Bimal Jain if Bimal Jain does not take registration in Haryana. This is the only issue for which you may have different answer. You may say that no, I need to take registration in Haryana, then only I can take credit of CGST and Haryana SGST charged by supplier of goods or services pertaining to that immovable property. Now, this is the only one bottleneck. But as a businessman, if I'm having 4 immovable property, I can take business call. I'm ready to forego the ITC input tax credit of my inward supply because I do not want to get into compliance of 4 different states. I'm ready to forego. If I'm ready to forego, then where is the condition that Bimal Jain must necessarily take registration in 4 different states? So I saw some of the guys has given the answer, no, we have to take registration. So with this analysis, what is coming out? It is coming out, it is not compulsory. Now let me ask one query to all of you. Now you have to answer, you all have to answer it. In this case, instead of letting out this property, in case this letting out of property is happening to Haryana-based client, example which I gave to you, if I change the example and say my client, my customer, my recipient is registered in Delhi, So now listen carefully, I need answer from all of you. Bimal Jain being supplier, registered in Delhi, immovable property located in Gurgaon, Haryana, but client to whom this property is being let out is registered in Delhi, not in Haryana, which was my previous example.
So in this example, I'm letting out to a client registered in Delhi. So supplier and recipient both are in Delhi. Property, immovable property is in Haryana. Please tell me whether this transaction would be intrastate or interstate. You should write in your chat box intra or inter. That much only I'm looking for. So some of the participants are now participating and giving the answer. It would be interstate. Rakesh Garg has said it's an intrastate transaction. No, it's an interstate transaction. For simple reason, location of supplier Bimal Jain, Delhi, and place of supply is location of immovable property. It has got nothing to do with location of recipient. So for immovable property, place of supply would be location of immovable property. Hence, interstate, I would be charging IGST. IGST. When I'm charging IGST, please tell me whether this Delhi recipient to whom I've charged IGST, can he take credit of IGST? Please tell me. Can he take credit of IGST? Please tell me, say yes or no. I want to see in a chat box whether credit is available or not. Credit is available or not. Rakesh Garg saying yes. Rakesh ji, you said intra in the beginning also, which was incorrect. Now on ITC also you are saying something. Just go peacefully think. I charge IGST and mention a state code of Haryana. Please, I'm telling all the participants now. Being supplier in Delhi, charge IGST and mentioning state code of Haryana because place of supply is Haryana in this case. Whether credit would be reflected in Delhi registration, the first question. So you can answer in a chat box whether credit would be reflected in your Delhi registration of the client. Tell me in a chat box. Ankita Mittal, Haryana IGST can be claimed only if recipient is registered in Haryana. Pradeep Kapoor is saying no. I want to have answer. Yes, but it will show POS as Haryana. Ayush is saying it will show, but the POS place of supply would be Haryana. So now when I'm saying all this thing, Romesh Saha coming with his copy paste question and pasting in a chat box. Romesh Saha, I really want you go along with me. Don't copy paste whatever you have in your mind to ask. Go all along with me. Why will deliver give credit for GST pertaining to Haryana? Rajesh Boraji is saying. Now these are the question and answer which I'm looking from all the participants so that we get real fruits of the question which we are discussing here. Now, in this case, though this IGST credit would be reflected in your 2A, but place of supply mentioned as a Haryana, there is doubt exists that that credit is not available. Now, having said that, my answer to all of you, my answer, look, listen this answer, and this answer is very much important. As per law, if I'm using Haryana property as my marketing office, that's not a sell office, only marketing office. I'm not taking any registration in Haryana, but that is being used in the course or furtherance of business. Why credit is not available to the recipient registered in Delhi? Just
take this question on a broader perspective. If this recipient company has taken 29 marketing office in 29 different states, and all 29 marketing offices are being used in the course or furtherance of business, why credit would be denied in daily registration, which is being used, though it is place of supply, you can give the credit of, you can give this SGST component to the consuming state, and they're the mismatch of the concept now. This is the concept I wanted to draw. Being daily, registered in daily, client in daily, having 29 marketing offices in 29 different states, can't I take credit? SGST component will go to the consuming state. If I given the credit in Delhi, that is called mismatch. Mismatch. For that region, we are finding if place of supply is a different state, then credit is not available. If place of supply is a different state, then credit is not available. And we are finding differences of ITC reflected in a 2A and avail in 3B. And this is what the bigger myth, and this is what the bigger exposure in GST, that the law does not bar it, but system-wise, this credit is not available to me. So this is the big drawback when we look at from ITC versus place of supply. I want to see in a chat box that I given my all explanation to you. Now, having said that 29 marketing offices in 29 different states, I have not taken registration. I'm not supposed to, I'm not supplying any goods or services from marketing offices. Why should I take registration? Why I should explain my compliances? IGST charged by the landlord. IGST charged by the landlord. He will charge IGST and mention place of supply. I'm just creating all this example, the consuming state, which is only for SGST goes to that respective state. But law-wise, there is no bar, but there is no mechanism at the back end that this SGST, which is going to consuming state, will be transmitted to a state where ultimately it is being used in the course of furtherance of business. This was my first analysis. Hence, I will give you the conclusion. But you tell me at the moment, I will give you my conclusion. But I want to listen from all of you in a chat box. Have you understood the disconnect of this place of supply versus ITC? Please tell me yes or no in a chat box. Please tell me yes or no in a chat box. Yes. When you have understood it, now my answer to all of you, in such case, what you can do and what is a better way? You have to develop the business scenario. Let's say you find that this property, which is in Haryana, Gurgaon, can be used as a supplier, and whatever credit which is being reflected can be availed. Then what you should do, you should take ISD registration at Delhi, take this credit in ISD, because of privity of contract, supplier going to charge recipient in Delhi, IGST, take credit of IGST in ISD registration and distribute this credit to the respective state so that they can avail the credit. So with this mechanism, you can transfer this credit from Delhi to Haryana, and Haryana can take registration. So you may evaluate this particular workability, wherein you can see, yes, this much credit can be transmitted, and with this process, you can utilize the credit. This is the first mode. And second mode, apart from ISD registration,
you can always look at cross charge, because this is the only one property related example which I given to you. But there may be a case that recipient company CEO, CFO, HR team, IT team sitting in Delhi, and they are giving services to the Haryana marketing office. So maybe you can work out that such kind of scenario, and where cross charge can be done, only system barring this IGST credit. There's no law which is barring me. And if I took the example of cross charge, if Delhi recipient company is undertaking lot many cross charge supply of services from Delhi to Gurgaon marketing office, then this is one of the credit. You may have other number of inward credit, and you may have other cross charge pertaining to supply of services entry to Schedule 1. With that process also, you can see transmission of credit from Delhi to Gurgaon. I'm not discussing at length because topic is place of supply and ITC. I've just given food for thought how this credit can be utilized. One is the ISD route, another can be cross-charge route, which you can look at from business perspective, and it may vary from one situation to another situation. Please, now tell me in a chat box whether you got it or not. Please tell me in a chat box whether you got it or not. Okay. Ayush has said yes. Sanjeev Chavda, Subhash Jain, Ankita Mittal. Okay. Okay. Now, I'm repeating for the benefit of all of you here, because I'm finding 2, 3. एक बंदे ने तो बोल ही दिया, हिंदी में बोलिए सर, चैट बॉक्स में हिंदी में यूज कीजिए. चलिए सर, हिंदी इंग्लिश मिलके यूज करते हैं, उनको भी अच्छा लगे, उनके लिए भी यूज करते हैं, आप लोगों के लिए भी यूज करते हैं. तो हमारे अंकित गुप्ता जी हैं, उन्होंने कहा सर थोड़ा हिंदी में भी आप हमें बता दीजिए. तो अंकित गुप्ता जी को भी बताने की कोशिश करते हैं, आप लोगों को भी बताने की कोशिश करता हूं. और ध्यान से आप सुनिए, आप भी अपना कंसंट्रेशन लेके आइए. हमें वो पीपीटी बेस्ड प्रेजेंटेशन देखने की आदत है, तो कई बार हम पीपीटी सेंटर्ड हो जाते हैं. फिर मैं रिपीट करता हूं, फिर से सुनिए आप. रिसिपिएंट कंपनी दिल्ली में है, लोकेशन ऑफ सप्लायर दिल्ली में है, इमूवेबल प्रॉपर्टी आपकी गुड़गांव में है. मैंने एक एग्जांपल लिया, हो सकता है कि 29 मार्केटिंग ऑफिसर्स हों और 29 डिफरेंट स्टेट में हों. एक एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं. लैंडलॉर्ड आपको आईजीएसटी चार्ज करेगा, ये वाला पार्ट सबने समझ लिया था कि लैंडलॉर्ड आईजीएसटी चार्ज करेगा. सेकंड कंपोनेंट था, क्या इस आईजीएसटी की क्रेडिट रिसिपिएंट कंपनी को दिल्ली में मिलेगी? जब मैंने ये कहा था तो आप लोगों ने आंसर दिया था नहीं मिलेगी. किसी ने कहा, कुछ लोग थे उन्हें कहा मिलेगी. लेकिन आप क्रेडिट लेंगे लेकिन हरियाणा को प्लेस ऑफ सप्लाई दिखाएंगे. तो सबसे बड़ा डिस्कनेक्ट क्या था कि एसजीएसटी, क्योंकि हरियाणा को जैसे ही आपने प्लेस ऑफ कंजम्पशन दिखाया तो एसजीएसटी कंपोनेंट ऑफ आईजीएसटी चला गया हरियाणा में, और आप कहते हैं दिल्ली में मैं क्रेडिट ले लूं. तो दिल्ली क्यों मानेगा? दिल्ली कहेगा एसजीएसटी तो आप हरियाणा को दे देते हो और क्रेडिट आप दिल्ली में लोगे, मैं तो नहीं दूंगा आपको. बट जब मैं इस बात को इस कॉन्सेप्ट पे कहूं कि इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, यानी जब जीएसटी लॉ इवॉल्व हुआ तो गवर्नमेंट को ये मैकेनिज्म बनाना चाहिए था कि प्लेस ऑफ सप्लाई में हरियाणा दिखाऊंगा. अगर एसजीएसटी हरियाणा को चला गया जो स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, मैं सबके लिए बात नहीं कर रहा, अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, पर इसका यूसेज दिल्ली की रजिस्ट्रेशन में हुआ क्योंकि मैंने मार्केटिंग ऑफिस बनाई है, वहां से मैं कुछ सप्लाई नहीं करता.
but that marketing office use in the course of furtherance of business in Delhi, तो मुझे दिल्ली में क्रेडिट मिलनी चाहिए. टू दैट एक्सटेंड बैक एंड मैकेनिज्म होना चाहिए. लॉ में कहीं बार नहीं है, लॉ में कहीं बार नहीं है, लॉ में कहीं ये नहीं लिखा कि प्लेस ऑफ सप्लाई अगर मैंने हरियाणा दिखा दिया तो आईजीएसटी क्रेडिट मुझे दिल्ली में नहीं मिलेगी, इवन दो इट इज यूज्ड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस. दिस इज द पॉइंट आई एम रेजिंग. लॉ में कहीं नहीं है. बट व्हाट इज द प्रॉब्लम कमिंग आउट? इफ प्लेस ऑफ सप्लाई इज शोन एज ए हरियाणा, दिल्ली में क्रेडिट नहीं मिलेगी. तो अब हमें आंसर निकाल लेते कि मैं क्रेडिट कैसे ले सकता हूं. मैंने कहा आपके पास दो मैकेनिज्म है. एक, आप दिल्ली में आईएसडी का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए. जब आप आईएसडी का रजिस्ट्रेशन लेंगे तो आईजीएसटी आईएसडी रजिस्ट्रेशन पे इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर एक कॉन्सेप्ट है. जो नहीं समझ पाए थे उनके लिए बोला, जितनी भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है जो आपने दिल्ली में ली बट गुड़गांव से रिलेटेड है, तमिलनाडु से रिलेटेड है, हरियाणा, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश उनसे रिलेटेड है, तो आप क्या करेंगे? दिल्ली में क्रेडिट लेंगे अंडर आईएसडी और इस क्रेडिट को रिस्पेक्टिव स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. अब डिस्ट्रीब्यूट करने का फायदा तभी है जब आप वहां रजिस्ट्रेशन लेके बैठे होंगे, तब आप वहां वो क्रेडिट ले लीजिए और यूटिलाइज कीजिए अपने आउटवर्ड टैक्स लायबिलिटी के साथ. एक कॉन्सेप्ट ये था. दूसरा कॉन्सेप्ट ये था कि नहीं, मैं आईएसडी नहीं लेना चाहता, क्रॉस चार्ज के जरिए कर सकता हूं. ऑफ कोर्स, क्योंकि जब दिल्ली में मेरी प्रिंसिपल ऑफिस है, मेरा हेड ऑफिस दिल्ली में है, तो एक क्रॉस चार्ज सप्लाई ऑफ सर्विसेज का एंट्री टू शेड्यूल 1 इवन विदाउट कंसिडरेशन. मैं एडवांस डिस्कशन कर रहा हूं आप सभी से इस मोमेंट पे. आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट. व्हाट आई एम टचिंग बेस क्रॉस चार्ज. आपका सीईओ, सीएफओ, कॉमन एचआर, आईटी, अकाउंट्स टीम दिल्ली में बैठी है. आप जब इसका बिल रेज करते हैं तो these are the inward services used for the cross charge made to the Haryana or other state. That may be other way to look at, but this is the business scenario. You need to get into the business scenario and check what is the modus operandi you must adopt for charging this credit to the other state. I hope I've given some explanation, made it repetition also. हिंदी भी मैंने थोड़ा यूज किया. अब आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए whether you got it right or not, yes or no. इतना ही बोलना है, yes sir, अब समझ में आ गया. Yes, this is technical matter but understandable to the extent. Please tell me in a chat box now. So I want to see in a chat box you're answering now. Okay. All right. अब एक दूसरा टेक्निकल एग्जाम्पल लेता हूं मैं. राजेश बोरा जी ने भी बोला ठीक है, संदीप खंडेलवाल जी भी बोल रहे हैं अब ठीक है, परफेक्ट हो गया. विजय कपूर जी ने कह दिया ओके, चलिए कोई इशू नहीं. अब एक दूसरा केस स्टडी लेते हैं और दूसरी केस स्टडी को समझने की कोशिश करते हैं. अवीश जैन एक क्वेश्चन कर रहे हैं और अनिल गुप्ता जी भी एक क्वेश्चन कर रहे हैं. देखिए अभी पहली बात आप समझिए, आईएसडी का रजिस्ट्रेशन आप गुड़गांव में क्यों लेंगे? फिर तो आप नॉर्मल रजिस्ट्रेशन ले लीजिए, आईजीएसटी की क्रेडिट फिर गुड़गांव पे बिलिंग करवा लीजिए. अवीश से कह रहा हूं. अवीश ने चैट बॉक्स में लिखा कि आईएसडी रजिस्ट्रेशन गुड़गांव में लेना पड़ेगा ना, दिल्ली में लेना पड़ेगा. अगर आपको आईजीएसटी चार्ज ही करवाना है तो फिर गुड़गांव में रजिस्ट्रेशन लीजिए और नॉर्मली दिल्ली से गुड़गांव में आईजीएसटी की बिलिंग कराइए, फिर तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व. आईएसडी रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है. सो अभी इसको यह आंसर था. अनिल गुप्ता जी ने कहा बट देन मुझे सारे स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, अनिल गुप्ता जी कह रहे हैं. तो अनिल जी ये तो आपका बिजनेस कॉल होगा. हो सकता है 29 मार्केटिंग ऑफिसेस में सिर्फ 5 मार्केटिंग ऑफिसेस हैं जहां पे वर्क होता है, जहां पे आपकी आउटवर्ड सप्लाई है और अदर स्टेट में है ही नहीं है. तो आपको बिजनेस कॉल में जो वो क्रेडिट है वो कॉस्ट हो जाएगी, पर रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है आपको.
से बिजनेस कॉल है। तो अनिल जी को मैंने समझाया कि आपको कंपलसरी लेना है, ऐसा नहीं है अनिल जी, ये तो आपका बिजनेस कॉल होगा कि 29 मार्केटिंग ऑफिसर्स में से सिर्फ 6 मेरी वर्क करती हैं। ठीक है जी, चलिए अभी अभी अंकित, अब आपको रुकना पड़ेगा। अगर कोई इनपुट सर्विस गुड़गांव में नहीं है तो फिर लेने की जरूरत नहीं है। चलिए अब आइए चैट बॉक्स में 1-2 वे, ये मैं कोशिश की समझाने की और बताने की। अब कोशिश मैं ये कर रहा हूं जिससे आप समझ जाएं चीजों को। चलिए कोई इशू नहीं। अब दूसरे टॉपिक पे आते हैं, सेकंड केस स्टडी पे आते हैं। इस सेकंड केस स्टडी में मैं चाहता हूं आप सब पार्टिसिपेट करेंगे और अब आप अच्छी तरह से समझेंगे जो कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रहा हूं। प्लेस ऑफ सप्लाई, इंटरप्ले विथ आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, इंटरप्ले दोनों का कैसे होगा। ट्राई एंड लिसन केयरफुली। और इसको मैं एक एडवांस रूलिंग के साथ भी कनेक्ट करूंगा। आई विल कनेक्ट विथ वन ऑफ द एडवांस रूलिंग। लिसन वेरी केयरफुली। अब आपको चैट बॉक्स में तब इन करना है जब मैं आपसे बोलूंगा, क्योंकि अब जो है ऑडियंस समझ रही है, तो अब आपको एक बिगर एक्सपोजर पे लेके जाता हूं, जहां पे मैं अभी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूं, आईटीसी की बात कर रहा हूं, प्लेस ऑफ सप्लाई की बात कर रहा हूं। लिसन केयरफुली। मान लीजिए मैं राजस्थान का सप्लायर हूं, एंड प्लीज रिपीट करने मत कहिएगा, क्योंकि फिर मैं अगर रिपीट करूंगा मेरे पास जो दूसरी केस स्टडी है वो रह जाएंगी। तो आप क्लियरली पहले सुनिए, ठीक से सुनिए। मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर हूं, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। मैं राजस्थान में रजिस्टर्ड हूं, राजस्थान। बिमल जैन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर है, राजस्थान में रजिस्टर्ड है। उसे कर्नाटका में एक प्रोजेक्ट मिला श्री सीमेंट लिमिटेड से। आप लोग सब श्री सीमेंट लिमिटेड बन जाइए, श्री सीमेंट लिमिटेड बन जाइए। आप कर्नाटका पहुंच जाइए, आपकी ऑफिस कर्नाटका में है। सो मैं सप्लायर राजस्थान में रजिस्टर्ड, आप कस्टमर रिसिपिएंट कर्नाटका रजिस्टर्ड। आपने मुझे 100 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट दिया, मुझे एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, मुझे एक फैक्ट्री बिल्डिंग बनानी है, कर्नाटका में बनानी है, कर्नाटका में। आप सी सीमेंट लिमिटेड है, आपने मुझे कर्नाटका में फैक्ट्री बिल्डिंग बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट दिया 100 करोड़ रुपए का। सो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर राजस्थान, customer is in Karnataka, and this factory building, which is immovable property, going to be constructed in Karnataka, in Karnataka. अब मैं आप सबसे पूछूंगा, क्योंकि अब तक अब सब आप आंसर्स, अवीश जैन थे, अंकित गुप्ता थे, और जितने भी मेरे स्मार्ट फॉलोअर्स हैं और जीएसटी एक्सपर्ट हैं, उन सबको अब मैं पूछूंगा। अब आप सबको आंसर देना है और इसको मैं एक एडवांस रूलिंग के साथ कनेक्ट भी करूंगा। बिमल जैन जो राजस्थान रजिस्टर्ड है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर, इज ही रिक्वायर्ड टू गो इन कर्नाटका एंड टेक रजिस्ट्रेशन? माय सिंपल क्वेश्चन। बिमल जैन, who is Rajasthan based supplier, is he required to go Karnataka and take registration? So सुकेश जैन जी हैं, बोल रहे हैं लेना पड़ेगा। If he, रेणु शर्मा है, वो बोलते हैं if he has a fixed place of business then required। मुझे तो वो अवीश जैन जी का चाहिए। हाँ हाँ बताइए, इंग्लिश मुझे आपसे वो लिखना नहीं चाहिए, हाँ ना बोलिए, यस और नो बोलिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना किसी से। मुझे ये बताइए, मुझे कर्नाटका में जाके रजिस्ट्रेशन लेना होगा? हाँ बताइए। अभी जैन जी बोल रहे हैं यस। अच्छा चलिए, और आप लोग बताइए, और भी लोग हैं यस नो करके, जिससे इसको मैं इंटरेस्टिंग बनाऊं आपके लिए। अब मेरी बात सुनिए, अब आप क्लियरली सुनिए।
मुझे कर्नाटका में जाके रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी तक जो आप जीएसटी लॉ पढ़ रहे हैं ना, उस लॉ को समझने की बहुत जरूरत है, और लॉ को जब हम समझेंगे तो हम अप्लाई भी करेक्टली कर पाएंगे। आप सोचिए, अगर मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत है और मुझे अगर 29 वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के प्रोजेक्ट 29 स्टेट में मिले, तो मुझे 29 स्टेट में जाके रजिस्ट्रेशन लेना होगा, यानी मैं सिर्फ कॉम्प्लायंस करता रह जाऊंगा, सिर्फ जीएसटी कॉम्प्लायंस 29 स्टेट का। पर जीएसटी में रह के मैं फिर कैसे इस काम को करूं कि मुझे रजिस्ट्रेशन भी ना लेना पड़े और मेरा काम राजस्थान में बैठ के होता रहे। तो चलिए, जो ये एडवांस रूलिंग आई है, उससे डिस्कस करते हैं, जिससे आपको समझ में आए, जिससे आपको प्रैक्टिकल एस्पेक्ट समझ में आए। अभी मे बी 25 डेज पहले मैंने एक वेबिनार किया था, जो लॉयर्स हैं उनके लिए किया था, और उसमें इस केस स्टडी को मैंने डिस्कस भी किया था। उसके बाद एडवांस रूलिंग आई थी, तो दिस इज मेकिंग माय पोजीशन वाइजर कि जो कॉन्सेप्ट मैंने अपने एक वेबिनार में किया था वही एडवांस रूलिंग आई। अब सुनिए, सारी चीज आप सुनेंगे और आंसर करेंगे। मैंने आपको कहा, मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर राजस्थान है। मुझे देखना पड़ेगा लोकेशन ऑफ सप्लायर की डेफिनेशन। मैंने देखा था एक कोई पार्टिसिपेंट्स थे जिनने उसमें ऐड किया था और बहुत अच्छा आंसर दिया था। मुझे देखना पड़ेगा मेरा लोकेशन ऑफ सप्लायर क्या है। तो मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि आपको 4 पिलर मैंने दे दिए थे, आपको देखना पड़ेगा 4 पिलर क्या है। मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर हूं, मेरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस जयपुर है, और मैं जयपुर से ही इस काम को सुपरवाइज करूंगा। मैं कर्नाटका में एक बस साइट ऑफिस खोलूंगा, पर सारा काम कंट्रोल एंड मैनेज जयपुर से होगा। तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस विल ऑलवेज बी जयपुर। I need not require to take registration in Karnataka. अगर I got fixed establishment in Karnataka for undertaking this works contract project, and fixed establishment mean permanence of technical human resources. Fixed establishment means the permanence of human or technical resources. Not only labor hai. It is being supervised only from Jaipur. So no fixed establishment. Second layer. Third, establishment most directly concerned, which is again Jaipur. And last, usual place of residence, which is again Jaipur. मुझे उस कॉन्सेप्ट के हिसाब से रजिस्ट्रेशन नहीं लेना है। अब ये तो मैंने आपको बता दिया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा आईटीसी रिलेटेड, इसीलिए आपके आंसर यस एंड नो में आ रहे हैं। अब उसको भी हम सॉल्व करते हैं। मैंने कहा ना, हम इंटरप्ले करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई वर्सेस आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब सुनिए, इस एडवांस रूलिंग में ये बातें भी डिस्कस हुई हैं जो मैं आपसे अब डिस्कस करने चाह रहा हूं। अगर मान लीजिए कर्नाटका का सप्लायर मुझे सीमेंट और आयरन स्टील बेचता है, सीमेंट एंड आयरन स्टील बेचता है कर्नाटका का। सो कर्नाटका का सप्लायर सप्लाइंग सीमेंट एंड आयरन स्टील, is he going to charge इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट? अगर इंट्रा चार्ज करेगा तो सीजीएसटी और एसजीएसटी, क्योंकि वो कर्नाटका में ही सप्लाई कर रहा होगा, या इंटरस्टेट होगा आईजीएसटी? प्लीज बताइए। इंट्रा चार्ज करेगा कर्नाटका का सप्लायर जो सीमेंट और आयरन स्टील चार्ज करेगा। अब मुझे मालूम है आप एक जगह सेंटर्ड नहीं होंगे, क्योंकि आपके आंसर डिफर करेंगे।
इसी समझाने के लिए मैंने अब आपको आंसर, देखिए दो कॉन्सेप्ट है ना, 10(1)(a) ऑफ IGST एक्ट, 10(1)(b) ऑफ IGST एक्ट, 10(1)(b) ऑफ IGST एक्ट। 10(1)(a) क्या कहता है? When supply involves movement of goods either by supplier or by recipient or by any other person, then place of supply would be where delivery terminates. So कर्नाटका का सप्लायर सीमेंट आयरन स्टील बेच रहा है और वो कर्नाटका की साइट पे ही छोड़ेगा, जयपुर में नहीं आएगा। तो आपको लग रहा होगा ये इंट्रा स्टेट है, CGST और SGST लगेगा। नो, इसमें तीन पार्टी इन्वॉल्व है, तीन पार्टी। सप्लायर जो सीमेंट और आयरन स्टील सप्लाई कर रहा है, जयपुर का कॉन्ट्रैक्टर जिसके कहने पे वो सीमेंट और आयरन स्टील कर्नाटका की साइट पे डाल रहा है, और थर्ड श्री सीमेंट लिमिटेड जो अल्टीमेट क्लाइंट है, जो अल्टीमेट क्लाइंट है। तीन पार्टी इन्वॉल्व है। सो मीनिंग देयरबाय आई कैन यूज 10(1)(b) of IGST Act to frame this transaction with no registration. To frame this transaction with no registration in Karnataka, क्या होगा? 10(1)(b) में जब सप्लायर सीमेंट और आयरन स्टील सप्लाई कर रहा होगा तो वो IGST चार्ज करेगा। Place of business, principal place of business of intermediary at whose instruction goods are being supplied to the client site, 10(1)(b). So यानी सप्लायर IGST चार्ज करेगा जयपुर रजिस्ट्रेशन पे, राजस्थान रजिस्ट्रेशन पे, मेरी रजिस्ट्रेशन पे, और मैं क्या करूंगा? मैं क्रेडिट लूंगा, मैं क्रेडिट लूंगा। अब आप ध्यान से सुनिएगा, प्लेस ऑफ सप्लाई अब आपने राजस्थान दिखाया है, मैं क्रेडिट लूंगा, और जब मैं बिलिंग करूंगा श्री सीमेंट लिमिटेड को एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, आई विल यूज दिस IGST क्रेडिट फॉर डिस्चार्जिंग माई आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। यानी जब कॉन्ट्रैक्टर राजस्थान का श्री सीमेंट लिमिटेड को बिलिंग करेगा, तो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया था कि सप्लायर राजस्थान, रिसिपिएंट कर्नाटका, इमूवेबल प्रॉपर्टी कर्नाटका। प्लीज टेल मी, आपसे मैं आंसर जानना चाहता हूं, जो सप्लायर अब बिलिंग करेगा कर्नाटका पे एज ए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस, इज ए इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट? प्लीज टेल मी इन चैट बॉक्स, intrastate or interstate, IGST. So no doubt to anyone, everyone is clarified now, interstate होगा। यानी on purchase intrastate। आप लोग चैट बॉक्स रोकिए, अब चैट बॉक्स रोकिए, मुझे सुनिए, अब मेरी बात सुनिए। परचेज आपने इंटरस्टेट किया, 10(1)(b) को अप्लाई किया आपने, 10(1)(a) अप्लाई नहीं किया, IGST की क्रेडिट राजस्थान रजिस्ट्रेशन में ली, और अब यहां से आपने इंटरस्टेट की बिलिंग कर दी विथ नो रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका। सो पहले आपके माइंड को वॉश करना है, वॉश क्लीन। मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन लेना है, पहले तो आप इसको साफ कीजिए। कई लोग अभी भी इस धर्म संकट में हैं कि कैसे होगा, कैसे पॉसिबल है, हाउ कम पॉसिबल, how things should be like this. So मैंने क्लैरिफाई किया, राइट? आपको कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। 29 स्टेट में अगर मुझे रजिस्ट्रेशन लेने होते, इधर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। कम टू द सेकंड पार्ट। अगर मान लीजिए मैं जयपुर वाले किसी सप्लायर से बोलता कि यार कर्नाटका पे वाला माल सप्लाई कर दो, कर्नाटका की साइड पे सीमेंट आयरन स्टील, जयपुर से कर्नाटका बेंगलुरु सप्लाई कर दो, ट्रांजैक्शन वुड बी इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट। अब मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दे चुका हूं।
मुझे चैट बॉक्स में आप सभी से करेक्ट आंसर चाहिए। अगर इसी सिचुएशन में मैं जयपुर बेस्ड हूं और जयपुर रजिस्ट्रेशन है मेरा और 10(1)(b) को अप्लाई करना है, तो लोकल राजस्थान सप्लायर मुझे क्या चार्ज करेगा? इंट्रा और इंटर will always be intrastate, एंड जब आप बिलिंग करेंगे तो आप क्या बिलिंग करेंगे? इंटरस्टेट, यानी CGST, SGST चार्ज बाय सप्लायर, credit supplier of cement and iron steel, credit taken by works contract service provider in Rajasthan using the CGST, SGST credit for discharging IGST liability. So this whole credit mechanism is working. आपने कर्नाटका से परचेज किया, वो भी वर्क किया। रेणु शर्मा बोल रही हैं उप्स, सब मिक्स्ड हो गया, सारा मिक्स्ड हो गया। एक अवीज जैन है, उनकी तो कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली ठीक करना पड़ेगा। 1 मिनट पॉज करते हैं, थोड़ी सी 1 सेकंड के लिए पॉज करते हैं। देखिए हमने डिस्कशन कहां से स्टार्ट किया? हमने डिस्कशन स्टार्ट किया था प्लेस ऑफ सप्लाई वर्सेस ITC इंटरप्ले। आप मुझसे सिंपल वाला तो नहीं समझना चाहते कि सिंपल मैं आपको पढ़ाऊं, कुछ नया देना है ना, और कुछ डिफरेंट देना है, कुछ तरीके का देना है जो समझ में आए। मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छी तरह से, आई नो 80% 90% लोग समझ रहे हैं, एक्सेप्ट 10%। कैन आई सी इन अ चैट बॉक्स? क्योंकि 2-3 लोगों को अगर मैं छोड़ दूं, अब तक जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आप चैट बॉक्स में लिखिए, whether you got it yes or no, इतना लिखिए तो मुझसे समझ में आ जाएगा। yes, मेरे 80-90% ऑडियंस समझ रही है। yes, ओके, सो मेरी 80-90% ऑडियंस समझ रही है। 10-20% जो ऑडियंस है उनको अभी भी समझ में नहीं आ रहा, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। अंकिता मित्तल अब मेरे साथ हो गई हैं, पहले उनको थोड़ा डाउट था। अंकित भी अब साथ है मेरे। अब लिसन, मैं किसी को ये नहीं कह रहा जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उसे समझ में नहीं आ रहा। अंकित गुप्ता बोल रहे हैं आप समझाएं और समझ में ना आए। मेरी बात सुनिए। इसमें एक ही कंसर्न हो सकता है किसी के माइंड में, सर प्लेस ऑफ सप्लाई तो कर्नाटका है। अवीस जैन यही क्वेश्चन कर रहा था। अब मुझे नहीं मालूम कि अवीस कितनी GST करते हैं, मुझे नहीं मालूम है, और मैं अवीस का नाम भी ले रहा हूं वेबिनार के अंदर। हो सकता है और भी हो, रेनू थे, उन्हें कहा उप्स सारा खत्म हो गया, समझ में नहीं आया। 2-3 लोग थे, लेकिन 80% 90% लोगों ने कहा समझ में आया। अब मैं आपको समझाता हूं। चलिए सर समझने की कोशिश कीजिए। कर्नाटका को SGST कंपोनेंट मिलना चाहिए था, राइट? कर्नाटका को SGST कंपोनेंट मिला या नहीं मिला, ये देखना है हमको। अगर कर्नाटका को मिल गया तो मेरा सारा मैकेनिज्म जो मैंने ये सारा खांचा बनाया विथ नो रजिस्ट्रेशन इन कर्नाटका वर्क करेगा। बताता हूं मैं आपको। पहली अब ध्यान से सुनिएगा, आई रियली वांट, आज जो कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा हूं, यू मस्ट गेट बेनिफिटेड। ध्यान से, पहले केस में मैंने आपको क्या बताया? कर्नाटका का सप्लायर सीमेंट और आयरन स्टील सप्लाई करेगा, हम 10(1)(b) अप्लाई करेंगे, IGST चार्ज करेगा सप्लायर, IGST चला गया राजस्थान में, यानी SGST कंपोनेंट ऑफ IGST हैज गॉन टू राजस्थान। राजस्थान को तो नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए कर्नाटका को। पर ये सप्लायर और वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा? वो क्रेडिट लेगा और जब वो बिलिंग करेगा श्री सीमेंट लिमिटेड को कर्नाटका में,
जब वो बिलिंग करेगा राजस्थान टू कर्नाटका श्री सीमेंट लिमिटेड, तो वो आईजीएसटी चार्ज करेगा, यानी आईजीएसटी क्रेडिट टेकन ऑन परचेज utilized for discharging IGST liability. Ultimately, the credit which is flown to Rajasthan has gone back to Karnataka. Ultimately, Karnataka got the SGST component on consumption based. First concept. Second concept को ले ले. Second वाला जब मैंने लिया एग्जाम्पल कि अगर राजस्थान का सप्लायर सीमेंट और आयरन स्टील देगा तो वो क्या बिल करेगा? CGST, SGST, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस प्रोवाइडर क्रेडिट ले लेगा। तो SGST राजस्थान में रह गया क्या? नहीं रहा। I am going to use this credit CGST and SGST, this works contract service provider going to use this credit of CGST and SGST for discharging IGST liability, which I charged to Karnataka. So ultimately, SGST component of IGST has gone to Karnataka. Hence, Karnataka is getting SGST component on the basis of destination-based consumption tax. So, Mr. Aviz Jain साहब, बहुत मेहनत की मैंने आपको समझाने के लिए। अब आप थोड़ा सा चैट बॉक्स पे भी लिखिए और आप सभी से भी पूछता हूं, अब आपको एक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हुआ या नहीं हुआ? प्लीज राइट डाउन एवरीवन। रेनू शर्मा, प्लीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ? उमेद, यस। बिल टू सिप टू। दीपक गुप्ता, यस। क्लियर नाउ। अब आप देखिए हमने कहां से स्टार्ट किया। अच्छा, अवीज जैन से यस लिखोगे क्या? अवीज जैन एकदम बैठ गए हैं वो बिग बॉस बनके। अवीज जैन साहब, क्वेश्चन करना बहुत आसान होता है, बस जब समझ में आए ना तो उसे एप्रोप्रिएटली प्राइस डिमार्केटेड कीजिए, तब आपको समझ में आएगा एक क्वेश्चन जो इतना टेक्निकल था उसको कैसे हमने समझा। नेवरदलेस, प्लीज आइए। अब मेरी एक चीज समझिए, लिसन। आपको मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, क्यों समझाया? पहला, मुझे कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन नहीं लेना। अगर मेरे पास 29 स्टेट है, अगर मेरे पास 29 स्टेट हैं, 29 स्टेट में मैं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट करूंगा तो फिर मुश्किल। 29 रजिस्ट्रेशन नॉट रिक्वायर्ड अनलेस देयर इज अ फिक्स्ड एस्टैब्लिशमेंट। पहला पार्ट। प्लेस ऑफ सप्लाई वर्सेस आईटीसी इंटरप्ले करके दिखाया मैंने आपको, प्लेस ऑफ सप्लाई वर्सेस आईटीसी। अब मैं लास्ट एक केस स्टडी लेता हूं और देन प्लेस ऑफ सप्लाई करके फिर हम आ जाएंगे आईटीसी के ऊपर। जितना टाइम परमिट करेगा अपन उस पर करेंगे। अब एक लास्ट केस स्टडी। अब आपको सारा कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया। अब आपको तीसरी केस स्टडी में तो सारी चीजें आपने, दो चीजें रजिस्टर्ड की। पहले मैंने लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी बताया, दूसरे में मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बताया। अब आप नोट कर लीजिए, अब आप नोट कीजिए कि ये जो एडवांस रूलिंग है ये आपको कहां से मिलेगी? कर्नाटका एडवांस रूलिंग T&D इलेक्ट्रिकल्स, T&D इलेक्ट्रिकल्स। मैंने कहा था ना मैं एडवांस रूलिंग से कनेक्ट करूंगा, इस पे है एडवांस रूलिंग। और अगर आपको और भी सर्च करना, आप हमारी वेबसाइट बिमल जैन www.a2jtaxcorp.com, इस पे आइए, आपको ये एडवांस रूलिंग का एनालिसिस पूरा का पूरा मिल जाएगा, पूरा मिल जाएगा। सो आप वॉच कर सकते हैं कि एडवांस रूलिंग जो बिमल जी ने इतना समझाया इस पे आ चुकी है। दिस इज द प्रूवन फैक्ट, प्रूवन रिकॉर्ड एज ऑन डेट। अब थर्ड केस स्टडी, मेरे ख्याल से आयुष थे जिनने मुझसे शुरू में क्वेश्चन किया था, काउंटर सेल के ऊपर किया था। काउंटर सेल में हम कॉन्सेप्ट को कैसे प्ले करें। चले काउंटर सेल को एक बार करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए
अभी तो कोविड-19 है, मार्केट सब बंद है, कुछ नहीं चल रहा, फिजिकल चीजें नहीं है, बट मार्केट के हिसाब से थोड़ा अपने माइंड को हम डालते हैं और कोशिश करते हैं। लिसन केयरफुली एंड सब ध्यान से सुनेंगे। आप सबसे मुझे एकदम करेक्ट आंसर्स चाहिए। मैं चाहता हूं जो भी कॉन्सेप्ट आज हम डिस्कस करके जाएं वो आपके एकदम माइंड में रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। लास्ट वन, अंडर प्लेस ऑफ सप्लाई। मान लीजिए मैं गुड़गांव का कस्टमर हूं और दिल्ली के चांदनी चौक में साड़ी खरीदने आया हूं। साड़ी, I'm a Gurgaon based customer. I've come to Delhi for purchasing sarees. तो अभी मैं आप सबको सप्लायर बना देता हूं। आप सब अपने आप को ऐसे इमेजिन सोचना स्टार्ट कीजिए कि आप सब सप्लायर हैं। आप सब सप्लायर हैं, ऐसा सोचना स्टार्ट कीजिए। आप सब चांदनी चौक में साड़ी बेचते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन दिल्ली में है। मैं गुड़गांव से आया आपके यहां, आपकी शॉप पे आया हूं चांदनी चौक में। मैंने साड़ी खरीदी। खरीदने के बाद मैं साड़ी जो है आपने मुझे चांदनी चौक अपनी दुकान पे ही हैंडओवर, जिसको हम काउंटर सेल बोलते हैं, काउंटर सेल आपने मुझे दे दी। अब आपको नहीं मतलब है कि बिमल जैन ये साड़ी लेके कहां जाएगा, और दो बातें तो आप पूछ ही नहीं सकते। अगर आपकी ऐसी चांदनी चौक में दुकान है और आपके पास कस्टमर आए तो आप दो बातें नहीं पूछ सकते। एक, पहली बात, किसके लिए लेके जा रहे हो और कहां लेके जा रहे हो। एम आई राइट? ये दो क्वेश्चन तो है हमारे पास, आप नहीं पूछ सकते। आप सप्लायर हैं, अब आपको अपना माइंड लगाना है, काउंटर सेल है, और स्लोली एंड स्लोली आपको चैट बॉक्स में आंसर भी करना है। स्लोली एंड स्लोली, मुझे फास्टर मोड पे नहीं चाहिए, आप एकदम स्लो पेस में मुझे आंसर करेंगे। अगर ये B2B ट्रांजेक्शन होता, B2B कहने का मतलब आप भी रजिस्टर्ड और मैं भी रजिस्टर्ड, हम दोनों रजिस्टर्ड, सप्लायर भी रजिस्टर्ड, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड। अगर B2B ट्रांजेक्शन होता तो ट्रांजेक्शन इंट्रा स्टेट होती या इंटर स्टेट होती? प्लीज बताइए, इंट्रा स्टेट या इंटर स्टेट? सुकेश जैन जी, प्रदीप कुमार जी, प्रदीप कपूर जी, अंकिता मित्तल इंट्रा स्टेट, दीपक गुप्ता इंटर स्टेट। ओके, कई लोगों ने इसमें जो मेजॉरिटी जो मेरे सामने आई, कुछ लोग इंट्रा कह रहे हैं, कुछ लोग इंटर कह रहे हैं। अब ध्यान से सुनना है, मैंने आप सबसे कह दिया है, आप सबका ध्यान मेरी ओर होना चाहिए। मैं आपको देख तो नहीं पा रहा, आप कितना मुझे वॉच कर रहे हैं, कितना सुन रहे हैं, लेकिन आपको अगर ये कॉन्सेप्ट समझना है तो मुझे ध्यान से सुनना पड़ेगा। अब मैं बोल रहा हूं और ध्यान से सुनिए। मैंने कहा अगर ये B2B ट्रांजेक्शन होती और जिन जिन लोगों ने इसको कह दिया कि ये इंट्रा स्टेट है, CGST SGST लगेगा, तो बिमल जैन जो गुड़गांव से आया था, रजिस्टर्ड इन हरियाणा है, उसे CGST और SGST की क्रेडिट नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नो वे। अब मैं आपसे बोलूं कि ये ट्रांजैक्शन तो इंटर स्टेट है। आप पूछेंगे कैसे सर, ये तो काउंटर सेल है, मैंने तो अपनी दिल्ली की दुकान पे दे दिया, मुझे क्या लेना देना, ये इंटर कैसे हो गया? आपको डिफिनीशन में जाना पड़ेगा। 10(1)(a), 10(1) क्लॉज A ऑफ IGST एक्ट। उसमें जाके आप क्या करेंगे? वो बोलता है, क्या बोलता है, सुन लीजिए जिससे आपको समझ में आए। वे सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। बिल्कुल मूवमेंट तो है, साड़ी लेके जाएगा, या तो ये दुकानदार गुड़गांव भेज दे, या मैं
दिल्ली की चांदनी चौक से लूं और फिर लेके गुड़गांव जाऊं। Where supply involves movement of goods either by supplier, supplier तो कर नहीं रहा, supplier ने तो साड़ी आपको दुकान पे दे दी, और by recipient, yes, कस्टमर इस साड़ियों को लेके गुड़गांव जाएगा, or by any other person. In all such cases, place of supply would be where delivery terminates. So delivery terminates कहां होगी? गुड़गांव, गुड़गांव। So क्या चार्ज होगा? IGST, यानी जब मैं बिलिंग कर रहा हूंगा, आप जब चांदनी चौक से सप्लायर बिलिंग कर रहे होंगे और मुझे क्रेडिट लेनी है रिसिपिएंट ने B2B ट्रांजैक्शन में, आप मेरा गुड़गांव का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, तो प्लेस ऑफ सप्लाई इंप्लाइडली हरियाणा हो गई। आप IGST चार्ज करेंगे, आप CGST SGST चार्ज नहीं कर सकते अनलेस मैं आपसे कहूं, कि नहीं नहीं मैं चांदनी चौक से मयूर विहार लेके जा रहा हूं, अनलेस मैं आपसे कहूं। अदरवाइज अगर मैंने आपको हरियाणा का रजिस्ट्रेशन दिया, इंप्लाइडली ये ट्रांजैक्शन इंटरस्टेट होगी। आप लोग के किसी के मैं भी आंसर नहीं चाहता, सिर्फ आप मेरी बात को सुनेंगे। अभी कोई चैट बॉक्स में अपने एक्सपर्ट कमेंट नहीं डालेगा, नो एक्सपर्ट कमेंट इन चैट बॉक्स। अभी तक मैंने इतना जो समझाया B2B के लिए, पहले आप मुझे बताइए, पहला। दूसरा एस्पेक्ट, अरे जब माल मेरा चांदनी चौक से गुड़गांव जाएगा तो मेरा ई-वे बिल जो जनरेट होगा वो चांदनी चौक टू गुड़गांव होगा। अगर आपने इंट्रा का बिलिंग कर दिया और माल इंटर जा रहा होगा, पॉसिबल है? पॉसिबल है? मुझे तो नहीं समझ में आता कि पॉसिबल है। थर्ड, जब आप टैक्स इनवॉइस बनाते हैं, टैक्स इनवॉइस, तो आप उसमें लिखते हैं जो आपने रजिस्ट्रेशन नंबर बायर का डाला, इंप्लाइडली माल वहीं जा रहा है। अगर बायर ही आपसे बोल दे कि नहीं ये वाला माल तो मैं मयूर विहार लेके जा रहा हूं, तब प्रॉब्लम है। अदरवाइज इंप्लाइडली दिस इज गोइंग टू हरियाणा। सो इन ऑल प्रोबेबिलिटी, जो अभी मैंने B2B ट्रांजैक्शन में बताया, और कंजम्पशन बेस्ड अगर हम कहें, डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, तो ये हरियाणा को ही मिलना चाहिए, चांदनी चौक को नहीं मिलना चाहिए। तो यानी आप सोचिए, क्रेडिट मैकेनिज्म को वर्क करने के लिए B2B ट्रांजैक्शन इज IGST ट्रांजैक्शन 10(1)(a। आप चैट बॉक्स में बस इतना समझाइए, यस मेरा जो डाउट था वो क्लियर हो गया। B2B में ये इंटरस्टेट है। अभी आप B2C मत पूछिएगा, B2C में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप B2B में ये बोल दीजिए यस, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। B2B में यस, ऑलराइट, ठीक है। अब हम आते हैं B2C में क्या होना चाहिए। B2C में क्या होना चाहिए? अब मान लीजिए मैं गुड़गांव में रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं अब आपके चांदनी चौक की दुकान पे आया, काउंटर सेल। देखिए, अगर मैंने 5 लाख की साड़ी ली और अगर आपके माइंड में ये आता है कि मैं काउंटर सेल अगर B2C है, क्योंकि B2B में अब आपने मान लिया है कि इंटरस्टेट है, आपने मान लिया इस बात को, आप समझ भी गए हैं इंटरस्टेट है। B2C में आपने कहा नहीं सर मुझे क्या मालूम वो गुड़गांव का है, कहां का है, मुझे नहीं मालूम, आई एम नॉट अवेयर, मैं तो CGST SGST चार्ज कर दूंगा, मैं CGST SGST चार्ज कर दूंगा, राइट। अगर आपने CGST SGST चार्ज कर दिया तो SGST तो अरविंद केजरीवाल को मिल जाएगा, दिल्ली को, पर माल कहां जा रहा है? गुड़गांव। मिलना किसको चाहिए? गुड़गांव को। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स, मिलना गुड़गांव को चाहिए। पर आपने अगर B2C काउंटर सेल को इंट्रा मान लिया तो सारा का सारा SGST अरविंद केजरीवाल ले जाएंगे, जो गलत है।
तो अब इस ट्रांजैक्शन को जीएसटी में कैसे ठीक किया गया? जीएसटी में ऐसे ठीक किया गया, उन्होंने कहा बिमल अब रिटेल सेल तो बहुत होती है, हर जगह होती है, हर स्टेट में होती है, अब हम यही पूछते रहेंगे गुड़गांव से आए हो या अमृतसर से आए हो या लुधियाना से आए हो या बेंगलुरु से आए हो, यही पूछते रहे कि माल बेचे, साड़ी बेचे। उन्होंने कहा बिमल जी एक चीज आप ध्यान से सुन लीजिए। अभी जितने भी चांदनी चौक के सप्लायर हैं ध्यान से सुन लीजिए, ये आप सबके लिए, मुझे तो बोला गया था, मैं आपको बता रहा हूं, मुझसे कहा था कि मैं आपको सुना दूं, सुना रहा हूं, क्योंकि आप सब चांदनी चौक के साड़ी वाले साड़ी बेच रहे हैं। उन्होंने कहा बिमल जी 50,000 रुपए तक की सेल जब होगी, 50,000 एंड लेस, तब आप उसे बी इंट्रा बना दीजिए या इंटर बना दीजिए, हमें कोई लेना देना नहीं है। यानी जीएसटी काउंसिल में सभी स्टेट ने इस बात को एग्री कर लिया कि 50,000 रुपए से नीचे तक की सेल में कोई नाटक नहीं करेगा। आपने अगर उसे इंट्रा बना दिया कोई फर्क नहीं पड़ता, इवन दो कमिंग टू गुड़गांव, डेस्टिनेशन बेस्ड गुड़गांव होना चाहिए, लेकिन इन्हें प्रिंसिपली आपस में तय कर लिया कि नहीं सर कोई प्रॉब्लम नहीं, हम इसको इंट्रा ही मानेंगे। लेकिन अगर 50,000 रुपए से ऊपर की बिलिंग है, लिसन केयरफुली, काउंटर सेल B2C transaction, if it is more than 50,000 rupees, then as supplier you are liable, जब आप इनवॉइस रेज करें, टैक्स इनवॉइस, आपको कंपल्सरली प्लेस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाई करना ही पड़ेगा। आपको मुझसे पूछना पड़ेगा कि बिमल जी ये वाला माल आप कहां लेके जा रहे हैं। अब 5 लाख का माल है, 5 लाख का हो सकता है, 50 लाख का माल हो, B2C ट्रांजेक्शन, शादी होने वाली है मेरे घर में, मैंने 50 लाख की साड़ियां ले ली, 50,000 से ऊपर है, और आप इसे काउंटर सेल मान के CGST SGST लगा दीजिए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। 50,000 से ऊपर अगर ट्रांजैक्शन है, एज सप्लायर यू नीड टू आस्क मी कि माल आप कहां लेके जा रहे हैं। मुझे बोलना पड़ेगा गुड़गांव, मुझे बोलना पड़ेगा गुड़गांव। जब मैं गुड़गांव बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट यू विल चार्ज IGST, by default you will charge IGST, and hence SGST component of IGST going to accrue to the state of Haryana. 50,000 तक आपके लिए फ्री वर्ड, आपने जो करना है कीजिए। 50,000 से ऊपर अगर आपका कोई इनवॉइस कटा हुआ है और आपने प्लेस ऑफ सप्लाई नहीं दिखाया, अब थोड़ा सा जुगाड़ कर लेते हैं हम, जुगाड़ वाला ट्रांजैक्शन। मान लीजिए आपने सब में दिल्ली दिखा दिया, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली दिखा दिया, जबकि मैं आया था गुड़गांव से, दिखा दीजिए, पर 50 लाख रुपए का माल होगा और मैं रास्ते में लेके जा रहा हूंगा, जिसमें मेरे पास इंट्रा स्टेट का बिल होगा मेरे हाथ में, और मैं माल लेके जा रहा हूं गुड़गांव, ई-बे बिल भी जनरेट नहीं किया, तो फिर क्या होगा? अगर माल पकड़ा गया तो क्या होगा सर? अगर जीएसटी वाला पकड़ेगा तो वो बोलेगा बिमल जी कौन सप्लायर है पहले ये बताओ। उससे बोलेगा तुमने ये गलत टैक्स चार्ज किया था, तुमको तो आईजीएसटी चार्ज करना था। वो बोलेगा नहीं सर मैंने सीजीएसटी एसजी चार्ज किया है ना, जमा करा दिया। बोले नहीं नहीं अब आईजीएसटी जमा करो और ये सीजीएसटी एसजीएसटी का रिफंड लो। यानी एक पार्ट आपको करेक्ट टैक्स पे करना पड़ेगा, दूसरा पार्ट जहां पे ऐसी गलती पाई जाएंगी आपके लिए पेनल्टी के प्रोविजन है अंडर सेक्शन 122 पेनल्टी प्रोविजन, दैट टू पर ट्रांजैक्शन। आप ये मत सोचिएगा होल बिजनेस, होल फाइनेंशियल ईयर, पर ट्रांजैक्शन। सो अब मैंने आपको B2C ट्रांजैक्शन भी समझा दिया। 50,000 तक बिंदास, 50,000 से ऊपर
प्लेस ऑफ सप्लाई जरूर पूछ लें। अब आप मुझे अपनी तरफ से चैट बॉक्स में इतना बता दीजिए कि हाँ ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया, प्लीज इन चैट बॉक्स। ऑल राइट, सो रेणु शर्मा जी ने कुछ एप्रिसिएशन दे दिया मेरे को। रेणु जी आपको अब समझ में आ गया इनफैक्ट, राइट? ऑल राइट, चलिए जी, चलिए, परफेक्ट। अब देखिए हम लास्ट हाफ एन आवर में हैं। हम लास्ट हाफ एन आवर में हैं। अब लास्ट हाफ एन आवर में मैं एक केस स्टडी और करता हूं। वैसे मेरी कोशिश थी कि मैं 5-6 करूंगा, पर मैं आई डोंट डू भागो भागो काइंड ऑफ थिंग्स। आई चलिए ठीक है, एक लास्ट केस स्टडी, और लास्ट केस स्टडी अपन करते हैं आईटीसी के ऊपर, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। और भी समझना है तो मैं आपके साथ हूं। मैं तो आपसे कहा कि आप हमारी वेबसाइट पे जाइए। वेबसाइट पे जितनी भी मैंने केस स्टडीज किए हैं और कई यूट्यूब पे प्रेजेंटेशन भी डली हुई हैं, वो भी आप देखिए। सो एक लास्ट दिल्ली हाई कोर्ट की केस स्टडी करूंगा, एंड देन विल कंक्लूड टुडेज वेबिनार, द लास्ट वन। लिसन केयरफुली। तो अब तक हमने 3 चीजें बड़ी अच्छी तरीके से की, और 3 चीजें जो हमने की, लोकेशन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, एंड B2B एंड B2C काउंटर सेल, जिसमें बहुत कंफ्यूजन और डिस्प्यूट होता है। एक हम करते हैं आईटीसी पे, इनपुट टैक्स क्रेडिट। लिसन केयरफुली, दिस इज द लास्ट वन। मान लीजिए, मान क्यों नहीं, ये रियल केस स्टडी है जो मैं आपके सामने कर रहा हूं। रियल केस स्टडी क्या है? रियल केस स्टडी है, एक क्लाइंट मेरे ऑफिस में आया। वन क्लाइंट केम टू माय ऑफिस, CFO, he was a CFO one PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के CFO थे। ऑफिस में आए और उन्होंने मुझसे कहा, बिमल जी, I was supposed to take credit of 6,25,000 in respective head of CGST and SGST, बट वो मेरा अकाउंटेंट 3B भर रहा था सर, और 3B लास्ट डेट में आपको मालूम है क्या हालत होती है, जाता ही नहीं है। सबके साथ है, जाता ही नहीं है। जब वो भर रहा था, रात हो गई थी सर। अब वो 6,25,000 में जीरो भर रहा है, उसे समझ में नहीं आ रहा कि जीरो वो ले भी रहा है या नहीं ले रहा था। वो जीरो के ऊपर जीरो डालता गया। जब तक उसने सबमिट एंड फाइल किया, इट बिकम 6,25 लाख, 6,25 लाख in respective head of CGST and SGST as against 6,25,000. So he has availed excess credit, wrongly availed. उसने पहला क्वेश्चन मुझसे पूछा, सर, this credit I have wrongly availed, what should I do? I said you need to reverse it. तो 3B तो आपने भर दिया, मान लीजिए सितंबर मंथ का था, सितंबर 2019 का मान लीजिए। अब ये अक्टूबर में ही रिवर्स करेगा, क्योंकि आप सितंबर का 3B रिवाइज नहीं कर सकते। अक्टूबर में रिवर्स कर दिया। अब ये पूछ रहा है मेरे से, सर, डू आई रिक्वायर टू पे इंटरेस्ट, डू आई रिक्वायर टू पे इंटरेस्ट ऑन रिवर्सल ऑफ this excess credit wrongly availed? There was no intention to evade taxes, but I have wrongly availed. My question goes to all of you. Please tell me, interest lagega on reversal of this excess credit? Please tell me, interest lagega kya? No, if not utilized.
नो इफ नॉट, राकेश गर्ग बोलते हैं लगेगा, ठीक है, नो इफ नॉट यूटिलाइज्ड, ओके ओके। सो कई पार्टिसिपेंट्स हैं, उन्होंने आंसर दिया अपनी तरफ से कि सर नहीं लगेगा अगर यूटिलाइज्ड नहीं किया है तो। आई एम ऑफ द सेम व्यू कि अगर आपने यूटिलाइज नहीं किया है तो इंटरेस्ट नहीं लगेगा। आई एम ऑफ द सेम व्यू, पर अब हमें लीगली इसको वैलिडेट करना है। आप लीगली कैसे कह सकते हैं? लॉ में तो लिखा है रॉन्ग अवेलमेंट और यूटिलाइजेशन, द वर्ड यूज wrong availment or utilization, the word is used. This is what, now when this is being written in the law, अब आपके माइंड में भी ये आएगा कि सर मैंने सिर्फ wrongly availed ही तो किया था, तो मैं अब आपको लीगल बैकग्राउंड देता हूं, केस स्टडी देता हूं। मैंने जो ओपिनियन इस क्लाइंट को दी, मैंने इस ओपिनियन में कहा कि इंटरेस्ट नहीं लगेगा। मैंने 3 रीजन दिए। पहला रीजन दिया कि इंटरेस्ट तभी लगेगा जब इस क्रेडिट की वजह से कोई नॉन पेमेंट या शॉर्ट पेमेंट हुआ हो। सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, इंटरेस्ट इज गोइंग टू बी लीविएबल only when this wrongly availed credit result into non payment or short payment। अब इस बात को मैं बोल दूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। एक एग्जांपल लूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। मान लीजिए आपकी 1000 रुपए की लायबिलिटी है, 1000 रुपीज की लायबिलिटी है, 1000 रुपीज की, और आपके पास 500 रुपए ई क्रेडिट लेजर में पड़े हुए हैं। 500 रुपए में 100 रुपए एक ऐसी क्रेडिट है जो रॉन्गली अवेल्ड है। सो 500 रुपीज इंक्लूड्स 100 रुपीज wrongly availed credit. Now for discharging this 100 rupees, and please listen carefully because these are very technical terms, but I'm trying to make it lucid for you. So please listen, because this is what I give in the opinion and given the background and which I'm discussing with all of you. I said for payment of 1000 rupees, you pay 900 from eCash Ledger. You pay 900 rupees from eCash Ledger. And you paid 100 rupees from e-credit ledger, which was having 500 rupees, inclusive of 100 rupees wrongly availed credit, right? अब आपने 1000 रुपए की पेमेंट कर दी। Can allegation be made that because of this wrongly availed credit, there was any non-payment or short payment? 1000 रुपए आप पे हुआ है, 900 रुपए कैश से, 100 रुपए क्रेडिट से, एंड क्रेडिट 400 रुपए ऐसे थे जो इलिजिबल क्रेडिट थी। आई पेड फ्रॉम देयर, सो दिस रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट इज नॉट रिजल्टिंग इनटू नाइदर नॉन पेमेंट नॉर शॉर्ट पेमेंट, हैंस नो इंटरेस्ट अंडर सेक्शन 50 सबसेक्शन 1, इंटरेस्ट नहीं लगेगा। सेकंड आर्गुमेंट, सर मुझे तो मालूम था कि मेरे से गलती हो गई है, मैं अपना 3B रिवाइज भी कर देता, पर गवर्नमेंट ने मुझे रिवाइज का ऑप्शन नहीं दिया। अगर मुझे रिवाइज का ऑप्शन दिया होता तो मैं उसी मंथ का सितंबर 2019 का 3B रिवाइज कर देता। सो दिस इज नॉट फॉल्ट ऑन माय पार्ट, सिस्टम इज नॉट अवेलेबल एंड एरर कैन हैपन, एरर कैन हैपन। Now, this was the second argument I took in giving the opinion. On this second argument, I got Delhi High Court judgment. On this second argument, I got Delhi High Court judgment. Listen very carefully. Delhi High Court in the case of Bharti Airtel Limited. Bharti Airtel Limited. पहले हुआ क्या था, पहले ये समझ लेते हैं जिससे आपको ये जजमेंट समझ में आ जाए। Bharti Airtel for the period July to September 2017, July to September 2017, उन्होंने क्या किया? They have paid their liability by cash 923 crore. 923 crore they
paid by cash, which otherwise they could have paid through credit account, which otherwise they could have paid through credit account. अब क्रेडिट से वो दे नहीं पाए, तो उन्हें रीजन दिया कि हम क्रेडिट से क्यों नहीं दे पाए। रिट पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में जाती है। उन्हें पहला आर्गुमेंट दिया, लॉर्डशिप जब जीएसटी आया था तो जीएसटी में 3 रिटर्न इन्वेस्टाज किए गए थे, GSTR 1, 2 and 3. And if you look at GSTR 1, 2, 3, अगर ये चलता तो आज की डेट में हम जितनी प्रॉब्लम आईटीसी रिलेटेड देखते हैं ये होती ही नहीं। GSTR 1 by supplier, ऑटो पॉपुलेटेड बाय रिसिपिएंट, आपके लिए हो जाती है, बायर के लिए हो जाती है। बायर कैन फाइनलाइज हिज 2A एंड फाइल 2 GSTR 2। आपने कोई करेक्शन किया, ऐड, मॉडिफिकेशन, डिलीट, auto populated in GSTR 1A for the supplier. Supplier can either accept or reject and then file 3. अगर ये सारा सिस्टम चलता तो जो क्रेडिट भारती एयरटेल को मिलनी थी वो उसे मालूम पड़ जाता। लेकिन इन्हें आर्गुमेंट दिया, लॉर्डशिप GSTR 2A था ही नहीं, ये आया ही अक्टूबर 2018 से, अक्टूबर 2018 से। सो जुलाई, अगस्त, सितंबर 17 में हमें नहीं मालूम पड़ा कि हमारी एग्जैक्ट क्रेडिट कितनी है। सो जो 923 करोड़ which I paid by cash could have been paid through credit account. Even the credit note raised by supplier of Bharti Airtel, they could not adjust, and if they could not adjust, corresponding net effect was not taken. So ये सारी चीजें हो नहीं पाई सर। अब भारती एयरटेल ने आर्गुमेंट दिया, लॉर्डशिप GSTR 2A था नहीं, जुलाई से सितंबर वाला पीरियड था, हमने कैश में पे किया। जब 2A आया तो हमने देखा यार हमारे पास तो क्रेडिट थी, which we could have used for discharging the GST liability. Hence we should be allowed to correct our GSTR 3B. We should allow to file manually on the basis of GST का मैकेनिज्म अवेलेबल नहीं है। एक सर्कुलर इशू हुआ था, सर्कुलर नंबर 29 दिसंबर 2017 को। उसमें लिखा हुआ था कि आप अपनी 3B को रिवाइज नहीं कर सकते, पर लॉ में कहीं नहीं लिखा, लॉ में कहीं नहीं लिखा कि आप रिवाइज नहीं कर सकते थे। मैं अब आपको बताऊं कैसे। मान लीजिए मैं सप्लायर हूं आपका, आपको मैंने कोई इनवॉइस रेज की, अगर मैंने अपने GSTR 1 में नहीं चढ़ाई तो आपके 2A में नहीं आएगी, पर आप उसे ऐड कर सकते थे। अगर GSTR 2 होता तो आप ऐड करते, क्रेडिट लेते। जब आप क्रेडिट लेते तो 1A ऑटो पॉपुलेट होके मेरे पास आता और मैं देख पाता कि आपने ये ट्रांजैक्शन ऐड किया है, विच आई नीड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट बीइंग सप्लायर। फिर मैं एक्सेप्ट करता, फिर आपको ऑटो क्रेडिट मिल जाती। पर आज की डेट में वी आर डिपेंडेंट कि सप्लायर नहीं चढ़ाएगा तो 2A में नहीं आएगा, 2A में नहीं आएगा तो मैं क्रेडिट नहीं ले पाऊंगा। These are the argument put forth before the lordship. So ने कहा GST लॉ को आपने 1, 2, 3 पे इन्वेस्ट किया था, यानी मैं रेस्पेक्टिव मंथ में एडजस्टमेंट एंट्री पास कर सकता था, पर आप सर्कुलर के जरिए बोलते हैं कि मैं 3B रिवाइज नहीं कर सकता। अभी मैं ये आर्गुमेंट तो ले ही नहीं रहा कि 3B इज रिटर्न अंडर सेक्शन 39 और नॉट, मैं आर्गुमेंट ही नहीं ले रहा। बट अगर ये सिस्टम चल रहा होता तो मैं करेक्ट क्रेडिट लेता, और क्रेडिट अगर मिलती मुझे तो मैं क्रेडिट से पे करता, कैश से मुझे पे करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब आप मुझे मैनुअल 3B या तो रिवाइज का ऑप्शन दीजिए जिससे मैं करेक्ट करूं, और जो पैसा मैंने कैश में दे दिया है वो मुझे डिपार्टमेंट से वापस दिलवाइए। एपी हाई कोर्ट का भी रिसेंट जजमेंट आ गया है। अगर किसी को ये लगे कि दिल्ली हाई कोर्ट, एपी हाई कोर्ट का भी अनदर जजमेंट दैट 3B कैन बी करेक्टेड, कैन बी रिवाइज्ड, even manually filed in the Bharti Airtel Limited, it is being emphasized that 3B can be revised.
अगर ये आंसर आ गया तो मैंने जो ओपिनियन देते वक्त आर्गुमेंट लिया था कि 3B का रिवीजन ऑप्शन मुझे नहीं दिया गया, अगर दिया गया होता तो मैं क्रेडिट रिवर्स कर देता, यानी जो रॉन्गली अवेल्ड क्रेडिट मैंने ली है, जिसको मैंने यूटिलाइज नहीं किया है, दिस इज एज गुड एज आई हैव नॉट टेकन द क्रेडिट. Second argument. Third argument I took that time, Patna High Court judgment in commercial state. और पटना हाई कोर्ट में ये कंक्लूड किया गया था, फॉर योर इंफॉर्मेशन, दिस वाज कंक्लूडेड that unless that credit result into reduction in output tax liability, interest is not leviable. So meaning thereby, two things I concluded before you: no interest if not utilized. Second, 3B is being permitted to be manually filed and can be revised. So you can always look at your option where you got huge amount involved, where you see that you can do the correction part. You must do that. This is high time. You must check it out. So this was pertaining to ITC, input tax credit. This fourth case study. So अब आप मुझे बता दीजिए, ये जो केस स्टडी ओवरऑल मैंने आपको समझाई, which is giving me two answer: no interest unless utilized, and 3B revision which is being permitted. Please tell me in your chat box, yes, you got it, you understand it. Please tell me in your chat box. Okay. चलिए, अब मुझे आप लोगों से एक इजाजत चाहिए. एक चीज और चाहिए. आप लोग मुझे एक चीज बताइए. एक केस स्टडी और मैं कर सकता हूं, बट देन फिर क्वेश्चन आंसर्स का टाइम नहीं होगा. आप मुझसे क्या चाहते हैं, मैं केस स्टडी करूं या क्वेश्चन आंसर करूं? अगर केस स्टडी करेंगे तो हम क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर पाएंगे. 6 o'clock I will close this session. So you tell me, you want question answer or you want case study? विमल जी केस स्टडी कर लीजिए सर. नितिन जी, विमल जी केस स्टडी कर लीजिए. सर मैं देख रहा हूँ सर, यहाँ पे केस स्टडी के लिए ज्यादा लोग बोल रहे हैं, तो केस स्टडी कर लेते हैं फिर हम. फिर देन क्वेश्चन आंसर, मतलब ये माइंड में नहीं आना चाहिए कि मैंने क्वेश्चन आंसर्स को, तो एक केस स्टडी कर लेता हूं मैं. ठीक है सर, केस स्टडी कर लीजिए सर. आप अगले एक हफ्ते 10 से 15 दिन का दोबारा टाइम दे दीजिएगा सर, हमारे को कोई दिक्कत नहीं. चलिए ठीक है, पहले केस स्टडी करते हैं सर. पहले केस स्टडी करते हैं. चलिए आइए. द लास्ट केस स्टडी बट वेरी इंपॉर्टेंट वन. अगर किसी के कोई क्वेश्चन आंसर्स रह गए हैं तो आप चिंता ना करें, कुछ तो आगे के लिए भी दिखना चाहिए ना. आगे के लिए भी मिलने की व्यवस्था होनी चाहिए कि आगे भी आप मुझे देखेंगे और मैं भी आपको देखूंगा. अब आप listen very carefully, the last one. See, this is being debated at length at different forum. कई स्पीकर आपके पास आए भी होंगे, कईयों ने एनालाइज भी किया होगा. But let me take this particular case study which is important for GSTR 9 and 9C for financial year 2018-19. Very, very important. So financial year 2018-19, GSTR 9 and 9C, the last date is now 30th September 2020. If your aggregate turnover is less than 2 crore, it is optional for you for filing GSTR 9. If it is more than 2 crore, you have to file GSTR 9, but audit is not required, GSTR 9C, if aggregate turnover is less than 5 crore rupees. So I've done 3 bases. 2 crore से नीचे हैं, GSTR 9 ऑप्शनल है. 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच हैं तो 9 तो भरना पड़ेगा, 9C नहीं भरना पड़ेगा.
और मोर देन 5 करोड़ हैं तो 9 and 9C दोनों करने पड़ेंगे, आपको दोनों करने पड़ेंगे। और लास्ट डेट है 30th September 2020। Now case study is banking on what is the last date, what is the last date to avail credit pertaining to financial year 2018-19। प्रोविजन देख लेते हैं, लास्ट डेट क्या है, क्या बोलता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4। आप पहले सब सुनते जाएंगे, जब मैं पूछूंगा तब आप आंसर करेंगे, और मैं चैट बॉक्स में जरूर पूछूंगा आपसे, आपके आंसर मुझे चाहिए। सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 बोलता है last date to avail credit would be earliest of two date. What is the earliest of two date? Due date for filing return under section 39 for the month of September following the end of financial year 18-19. So meaning thereby September 19 की सेक्शन 39 में जो रिटर्न जाता है, जाता तो 3 था, GSTR 3B रूल के जरिए डाला गया। गुजरात हाई कोर्ट ने कहा ये रिटर्न नहीं है 39 में, मैटर इज सब जुडिस बिफोर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, बट नेवरदलेस लेट्स अज्यूम 3B अगर 39 में रिटर्न है तो सितंबर 19 की ड्यू डेट होगी 20th October 2019। और डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न, अब कितने लोगों ने भरा है एनुअल रिटर्न मुझे नहीं मालूम, लेकिन डेट ऑफ फाइलिंग एनुअल रिटर्न सो विच इज 30th September 2020, अर्लीस्ट ऑफ दीज टू डेट। सो अगर इस एनालिसिस को करें तो मेरे लिए लास्ट डेट होगी 20th October 2019। अब मेरा पहला क्वेश्चन, कैन आई टेक, लेट्स से मैं एक एग्जांपल क्रिएट कर लूं जिससे आपको समझ में भी आए और आप समझ भी पाए, कि मान लीजिए आपकी फरवरी और मार्च 2019, फरवरी एंड मार्च 2019 में 5 करोड़ रुपए की क्रेडिट थी, जो आपने दिसंबर में, इन दिसंबर 19 you have taken the credit after 20th October 2019। अब मैं आप सबसे पूछूं, ये पूछना चाहता हूं मैं चैट बॉक्स में आपसे, whether this credit is available to me which is taken beyond 20th October 2019, please tell me in the chat box, possible or not possible, please। सर चैट बॉक्स में आपके आंसर आने चाहिए मेरे पास, मुझे तो आप बताइए पॉसिबल है या नहीं है। राजीव कुमार झा हैं, वो बोलते हैं पॉसिबल नहीं है। केशव कुमार हैं, नॉट एट ऑल, नहीं मिल सकता। अजय चारिया जी भी हैं, वो भी मना कर रहे हैं नहीं मिलेगा। ओके, अंकित गुप्ता जी भी मना कर रहे हैं, नरेंद्र सिंह जी भी मना कर रहे हैं, अंकिता मित्तल भी ना कर रही हैं। अच्छा, रेणु शर्मा जी ने कुछ कैवियट डाल के आंसर डाल दिया है। सुकेश जैन जी भी मना कर रहे हैं। प्रमोद गुप्ता जी हैं, बोल रहे हैं पॉसिबल है। अच्छा, संजय गुप्ता जी ने हाँ कहा है। और भी कोई कुछ कहना चाहता हो? ओके, विजय कपूर कुछ प्लानिंग करने की बात कर रहे हैं, बोले प्लानिंग के साथ मिल जाएगा आपको। आयुष बोलते हैं मिल जाएगा। अब अभीश जैन कहीं नहीं दिख रहे, अभीश जैन है या चले गए? अभीश जैन मिलेगा नहीं मिलेगा बताइए। चलिए सर, कोई इशू नहीं। अब आप कपिल बोल रहे हैं आप फाइट करोगे तो मिल जाएगा, पॉसिबल बट हैव टू गो टू कोर्ट। अच्छा चलिए, अब सुनिए सर मेरी बात। मैं आपको 3 लीगल आर्गुमेंट दूंगा, 3 लीगल आर्गुमेंट दूंगा। उस लीगल आर्गुमेंट के बाद मैं आपको एक जज बना देता हूं। अभी आप सब जज बन जाइए, मेरे लिए जज। मैं आपका काउंसिल आपके सामने आर्ग्यू कर रहा हूं इस केस को।
और मेरा आर्गुमेंट ऑलवेज होगा कि मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। तो उसी लाइन पे मैं आर्गुमेंट कर रहा हूं, आप जज बन जाइए और सोच के मुझे बताइएगा कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। अब कहीं कागज कलम पे आप नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि जरूरी है कल आप अगर चेक करना चाहें तो आपको मालूम पड़े ना कि जो आर्गुमेंट आज मैंने दिए लीगली वैलिड है या नहीं है। मेरा पहला आर्गुमेंट, सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 टाइम लिमिट प्रेस्क्राइब करता है। सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 उसमें 4 कंडीशन है कि आपको क्रेडिट कब मिलेगी। 4 कंडीशन है आपको क्रेडिट कब मिलेगी। पहली कंडीशन वो बोलता है आप अगर कस्टमर हैं तो आपके पास टैक्स इनवॉइस होनी चाहिए। यू मस्ट हैव रिसीव्ड गुड्स और सर्विसेज। थर्ड, योर सप्लायर मस्ट हैव पेड टैक्सेस। And last, being recipient, you must have filed the return. Section 16 subsection 2 ये 4 कंडीशन डालता है। और मान लीजिए जो एग्जाम्पल मैंने लिया फरवरी मार्च 2019 का 5 करोड़ का मेरे पास इनवॉइस थी, मैंने गुड्स एंड सर्विसेज रिसीव भी किए हैं, मेरे सप्लायर ने टैक्स का पेमेंट भी कर दिया है, बट गलती मेरे से हुई कि मैं क्रेडिट नहीं ले पाया, मैंने दिसंबर में जाके ली। And being recipient, I'm filing my return also. So I'm satisfying all 4 conditions of section 16 subsection 2. Now अब आपको ये देखना है कि section 16 subsection 2, section 16 subsection 4 independent है, एक दूसरे से independent है, but section 16 का part है, section 16 का part है। section 16 subsection 2 start होता है notwithstanding under this section, section 16, credit is available provided these 4 conditions are satisfied. Lordship, my judge, आप लोग जज बन जाइए। मैं आपसे बोलूंगा जब सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बोलता है और ओवरराइड करता है कि सेक्शन 16 में जितने भी सबसेक्शन है उसको ओवरराइड करता है, यानी उसने सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 को भी ओवरराइड कर लिया और कहा अगर ये 4 कंडीशन आपने सेटिस्फाई कर दी तो आपको क्रेडिट मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में कोई टाइम लिमिट नहीं है। टाइम लिमिट सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 में है, जिसको ओवरराइड कर दिया सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 में। सो मैं पहला आर्गुमेंट मेरा होगा लॉर्डशिप टाइम लिमिट प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल, आई एम सेटिस्फाइंग द कंडीशन, पहला पार्ट। अब आप लोग अच्छी तरह से देख लीजिएगा, पहले मैंने आपको नोट करा दिया सेकंड पार्ट। मैं भी ये लीगल आर्गुमेंट आप लोगों के सामने इसलिए कर रहा हूं जिससे आप समझ जाएं सारी चीजें। सेकंड आर्गुमेंट, जीएसटी में, एक मिनट होल्ड कीजिएगा आप लोग, जस्ट एक मिनट होल्ड कर लीजिए बस। First, give me just few minutes. I'm calling you back. I'm just finishing up webinar. All right. Yeah. Second argument. जीएसटी में मान लीजिए अगर आपने जुलाई से लेके दिसंबर तक का रिटर्न नहीं भरा हो, जुलाई 19 से लेके दिसंबर 19 तक का रिटर्न नहीं भरा हो, और अब आपको अगर रिटर्न भरना है तो आप दिसंबर 19 का रिटर्न पहले भर सकते हैं। लॉ बार करता है, लॉ मना करता है, लॉ बोलता नहीं पहले पिछले मंथों का रिटर्न भरो तब जाके आप करंट मंथ का रिटर्न भर सकते हैं। तो मेरा दूसरा आर्गुमेंट आप लोगों के सामने, मैं बोलूंगा सर 17-18 का एनुअल रिटर्न 20 अक्टूबर 2019 को ओपन था। 17-18 की लास्ट डेट थी 31 जनवरी 2020। स्टैगर्ड मैनर में भरी थी 3 फरवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी। मैं बोलूंगा जब 17-18 ओपन था वो क्लोज नहीं हुआ, how you can expect me to close 18-19 when law says पहले पुराने महीने के क्लियर करो फिर करंट मंथ। माय सेकंड आर्गुमेंट, जब लॉ इन्वेसेस करता है कि पहले आप पुराने मंथ क्लोज करो तब आप करंट भर पाओगे, तो जो 20 अक्टूबर 2019 था उस डेट में 17-18 ओपन था सर। 17-18 की क्रेडिट फाइनल नहीं थी, वो फाइनल हुई है 31 जनवरी 2020 को। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट मी टू फाइनलाइज 18-19 ऑन 20 अक्टूबर 2019? सेकंड आर्गुमेंट। थर्ड आर्गुमेंट, it is my vested right
Section 16, subsection 2, guaranteeing me object clause of GST envisages कि seamless flow of credit होगी. अगर आप मुझे क्रेडिट नहीं देंगे और मुझे आउटवर्ड पे टैक्स देना पड़ेगा, इज इट नॉट डबल टैक्सेशन? और ये जीएसटी का सिस्टम, एनुअल रिटर्न का सिस्टम, 2A का सिनेरियो, प्रीसीडिंग मंथ कंसेप्ट, अगर ये सारी चीजों को मैं लूं, then taxpayer is not at convenience. He was not in a position to finalize his credit for 17-18 on 20th October 19, and you wanted me to close my credit of 18-19? My vested right. Third argument, submission. पहले तो मैंने लीगल आर्गुमेंट दे दिया है कि सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 नॉट विथस्टैंडिंग से खड़ा होता है, नॉट विथस्टैंडिंग. सेकंड, मैंने आपको आर्गुमेंट दे दिया प्रीसीडिंग मंथ के कॉन्सेप्ट का. और थर्ड, मैंने आर्गुमेंट किया जीएसटी इन्वेस्टर्स. अब ऐसे सिचुएशन में हमको करना क्या चाहिए? मैं तो आपसे ये बोलूंगा, क्रेडिट ले लीजिए, क्रेडिट ले लीजिए. And the writ has been filed. Let me tell you, on section 16 subsection 4, writ has been filed and notice is being issued to the revenue. Yani there are possible chances that this should be allowed. So what happened? Credit availed but not utilized. कल अगर सुप्रीम कोर्ट ने contrary judgment दे दिया तो हम रिवर्स कर देंगे. No interest, no interest. That's what the point which I'm raising here. Now, having said all this thing, now I'm giving a food platter before you. तब तक जब तक मैं आपको कंक्लूड करूं, रेनू जी ने कुछ पूछा है, अभी मैं इसमें आपको इन्वॉल्व नहीं करूंगा. आप मुझे बताइए, मैंने आपको जज बनाया था. अगर ये सारे फैक्ट और सिचुएशन आपके सामने हो और लीगल आर्गुमेंट प्रोवाइडेड कोई चेंज ना हो लॉ में, आपको क्या लगता है, आप लोगों ने जिन जिन लोगों ने ना किया, अब क्या मैं आपको सेटिस्फाई कर पाया हूं कि मुझे क्रेडिट मिलनी चाहिए? प्लीज टेल मी. इफ यू फील यस, you got satisfied, credit is available, right? Yes. If you feel no, still credit not available, you can write no, not an issue. But write in chat box yes. Okay. चलिए, मैक्सिमम ने कन्वर्ट किया अपना आंसर्स. दे आर सेइंग वेरी कन्विंसिंग. अब रेनू शर्मा जी हैं, रेनू शर्मा जी ने एक क्वेश्चन इसमें ऐड कर दिया, तो उनका क्वेश्चन लेते हैं, उसको फिर क्लोज करते हैं. उन्होंने कहा, सर अगर गवर्नमेंट ने नॉट विथस्टैंडिंग को विथ रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हटा दिया तो, रेनू जी और आप सभी को लॉ की इंटेंशन एज ऑन डेट क्या है उससे क्लियर होती है. अगर आपने एज ऑन डेट जो लॉ है उसके बेसिस पे एक्शन लिया है, यू कैन ऑलवेज काउंटर रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, and there are legal jurisprudence for that. I'm not going in much debate. I'm only saying, if you're taking action on the basis of law existing today, which is subsequently at a future date removed by retrospective effect, you carry a weightage of your action taken, and that cannot be taken away just by removing notwithstanding. This is my answer to Renuji and to all the participants. I hope you got this particular things. Bimal ji. हाँ जी. नहीं बोलिए सर, बोलिए. You're saying something, right? Sorry. Now I want in a chat box from all of you, whether this particular argument of section 16 subsection 4 is clear. If it is clear, tell me yes, so that I get a feeler of it. Yes, it's workable, yes, doable, and we can do that. Okay, perfectly. So आप लोगों ने चैट बॉक्स में सबने हाँ कर लिया. अब मुझे नहीं मालूम यूट्यूब में क्या कमेंट आए हैं, नहीं आए हैं, मुझे नहीं मालूम. मैं तो सिर्फ जूम पे देख पा रहा हूँ. अब मेरी एक रिक्वेस्ट आप सभी से, GST, I know that lot of webinar going on, lot of topic we are deliberating. Now that learning of GST, the way it is GST, it is not GST now. Please try to understand and appreciate.
GST is something different if you look at from really premium and quality perspective. You have to really go back to the law, check the law, analyze the law. Tran 1 भी आज मैं कर सकता था, brand equity, time was a pause. I did not do that, but nevertheless, whatever was permissible, interplay of place of supply versus ITC versus registration, I try to make it more interesting. And such videos are available on my YouTube channel, which you can subscribe. I invite everyone, जितना हम एक दूसरे से knowledge share कर सकें. Ultimate objective is we must grow together. And that is what my humble submission. COVID-19, take care of yourself. That is very important. Take care of your family as well. Do whatever best you can do, keeping yourself safe at home and happy. With this, allow me to say thanks to each one of you, handing over to Nitin ji for his concluding remarks. बिमल जी, मुझे ना एक्चुअली मैं जब भी मैं देखता था लोगों को, और मैं जितने मेरे स्पीकर्स हैं मैं सबको ये बोलता था यार कि पीपीटी जरूर यूज करियो यार, पीपीटी जरूर यूज करियो. मतलब नॉर्मली आई यूज्ड टू से. और सर मुझे पहली बार लगा कि बिना पीपीटी के कैसे पढ़ाया जा सकता है. और द वे आपने चैट बॉक्स को यूज किया, मुझे लगता है हमने इतने सेशन कर लिए, शायद ये मतलब आई बिलीव 60-65 हमारे हो गए होंगे. पर जिस चैट बॉक्स को आपने यूज किया है, मुझे नहीं लगता, और जिस तरह से आपने लोगों को इन्वॉल्व किया सर, मतलब मुझे लगता है आपको एक क्लास ये भी लेनी चाहिए कि प्रेजेंटेशन कैसे देनी चाहिए. इट्स रियली अमेजिंग, सुपर्ब. मतलब एक्चुअली एक एक बंदा इन्वॉल्व था. और मैं बताऊं आपको सर, मैं इतना जीएसटी देखता नहीं हूँ, और मैं भी बैठे बैठे ये देख रहा था कि क्या हो रहा है, कैसे बोल रहे हो आप, द वे यू आर स्पीकिंग. मुझे लग रहा था हाँ यार ये हो सकता है, शायद नहीं हो सकता. 99% मेरे आंसर गलत थे, पर चक्कर क्या, क्योंकि मैं जीएसटी करता नहीं, पर मेरे को लग रहा है कि आई एम आल्सो इन्वॉल्वड इन दैट. द वे यू स्पीक, द वे जिस तरह के से डिलीवरी है सर, मैं सच में कह रहा हूँ सर, मास्टर क्लास. और मैं आपको, मैं ये बात बड़े बहुत बात नहीं बोल रहा हूँ सर, सच में जीएसटी का प्राइवेची नाम सब बिमल जैन हो जाना चाहिए. It's wonderful. मुझे नहीं मालूम. Speechless, मैं झूठ नहीं बोल रहा सर. मैंने देखिए टैक्स पे बहुत कुछ देखा है, बहुत लोगों को देखा है. The way you speak, the way तरीके से आप बोलते हो, जिस तरीके से आप समझाते हो, मतलब एक नॉलेज होना एक अलग चीज है, डिलीवरी होना और सामने वाले को समझाना, सब वंडरफुल. मतलब स्पीचलेस सर, सीरियसली कह रहा हूं सर. कोई इशू नहीं है, मैं तो बस लोगों का प्यार है, आप लोग इतना प्यार करते हैं. एक सर मैं सबको बता भी दूं, बिमल भैया ऑलरेडी एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया बिमल भैया ने अपना. और आई बिलीव किसी को जीएसटी में इंटरेस्ट है, और आई बिलीव सर आप कितने 15 सेशन ले रहे हैं, उसमें कितने ले रहे हैं? 15 webinar or complete advanced GST course. I will definitely, I'm trying my best. It's a successful best course होना चाहिए. And अगर जिसको जीएसटी में इंटरेस्ट है, तो मैं तो कम से कम रिकमेंड करूंगा वन शुड गो. और सर वो आपके 15 वेबिनार जब खत्म हो जाए तो एक सेशन वापसी हमारे को जरूर देना. वापसी आप बिल्कुल एट ऑल टाइम. देखिए मैंने आपको मना नहीं किया था, मैंने कहा नहीं, आपने सर कभी मना नहीं किया. हाँ. क्या होता है सर, पहले बुकिंग करा दो ना सर एडवांस में, तो बंदा कहता हाँ तूने बोला था पहले. गॉड साहब से समथिंग. नहीं तो बहुत अच्छी बात है. मैंने तो वो शुरू में कहा था कि कुछ नई चीज मिलती है. 2 नई चीजें तो मैंने पकड़ ली कि सब रजिस्ट्रेशन, हर आदमी कहता रजिस्ट्रेशन कहाँ लूं, कैसे लूं. इतना ल्यूसिड एक्सप्लेनेशन था कि रजिस्ट्रेशन लेना है, नहीं लेना है, क्यों लेना है, जरूरत ही नहीं है. और दूसरी चीज कंजम्पशन, एसजीएसटी कहाँ जा रहा है वो पकड़ो. दैट विल डिसाइड एवरीथिंग. आईजीएसटी होगा, सीजीएसटी होगा, मतलब इंटर स्टेट होगा या इंट्रा स्टेट होगा. So really it is marvelous deliberation. Thank you. Thank you so much, Vimal ji. Thank you. To being with us. It's wonderful, Thanks sir, wonderful. Really wonderful. Sir. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Excellent. Thanks a lot, sir. Thank you, sir. Thank you. Thanks, man.